Hello everyone, I am hoping that you are safe and fine. Today again we are here with our next chapter, that is chapter 5, acids, bases and salts. So yes, before going to start with this chapter, we should know about some of the things, or we will discuss some of the things. Okay, so we are going through many kinds of taste in our daily routine life. We are observing or we are feeling many tastes like sweet, sour, salty and sometimes bitter too. So what are these substances? Actually this chapter is all about this. In this chapter we are going to do about the acids, the bases, the salts and the neutral substances, along with one small thing, that is an indicator. So all these things we are going to do in this chapter. So yes, first we should go through with some of the substances which we are eating in our day routine life and how they are, what are their taste actually in our daily routine life. So yes, let's see. First one is, the substance is lemon juice. Yes, in these days so we are using lemon a lot. So yes, lemon juice, its taste is what? It is sour in taste. Sour means khatta. Yes, I think so कि you all know it very well, but still I am telling you again. Next is orange juice. Orange juice which we are drinking. Actually, I am preferring to eat the orange rather than to drink the orange juice, because the orange is having fibers too. But still, if you are drinking a kind of juice, then it is good. Okay. So yes, orange juice. Orange juice is sour and sweet. Khatta meetha. Okay. Next one is curd. Curd is sour in taste. Curd, which is made by the milk. Next is sugar. Sugar is sweet in taste. Sugar as the name tells by itself that sugar is sweet in taste. Next is common salt. Common salt is salt, that means salty. So yes, of course it is salty in taste. Next one is amla. Amla is bitter in taste. और कड़वा होता है. Yes, bitter means कड़वा. Yes, amla is bitter in taste. Next is baking soda. Baking soda again is bitter in taste, but still we are adding it in the cakes to make the cakes more fluffy and soft. हम कड़वा होने के बावजूद इसे यूज करते हैं. Next is tamarind. Tamarind you will going through in many times in this chapter or in your higher classes. You should know about the word tamarind. It is imli. So yes, it is sour in taste and the vinegar is sour in taste again. So in this chart we are going through 4 kinds of taste. One is sour, one is sweet, one is salty and one is bitter. So this chapter is all about that, which kind of substances are sour in taste, which kind of substances are bitter in taste, sweet in taste and salty in taste. We will discuss all these substances in detail one by one. So our first substance is acid. Acids are those substances which are sour in taste. Means खट्टे होते हैं जो substances, उनको हम acid बोलते हैं. Actually the word acid come from a Latin word. The name of the word is acidus. It means sour. So yes, it comes from a Latin word. So yes, its name is acid. Those substances which are sour in taste. So yes, acid can be classified in 2 kinds of ways, या 2 ways. First one is on the basis of origin, from where we are getting this acid. Or second way is on the basis of concentration, how much concentrated it is. First one is on the basis of origin. We are classified the acid in 2 forms or 2 kinds of classification. First one is organic acids. Organic acids are those acids which we are getting from plants and animals, means nature. जो हमारे आसपास अपने ऑर्गेनिक मटेरियल होता है कोई भी लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, तो ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं. तो इनसे जो भी एसिड मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है. द एसिड्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. बट इनऑर्गेनिक एसिड्स, और वी कैन से मिनरल एसिड्स और लेबोरेटरी एसिड्स, दीज आर दोज एसिड्स विच जर्नली we are making in the laboratory, so that's why it is called as laboratory acids. जो एसिड्स हमें नेचर से नहीं मिलते हैं लेकिन हम लैब में बनाते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक, मिनरल या लेबोरेटरी एसिड्स बोलते हैं.
ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल द एसिड्स और ऑल द काइंड्स ऑफ एसिड्स इन डिटेल वन बाय वन, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक जनरल व्यू बता रही हूँ. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूटेड एसिड्स. कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स in which the amount of acid is more and water is less. Diluted acids, diluted means more amount of water, in which water is more and acid is present in less amount. So yes, acid can be classified into 4 types, 2 on the basis of origin and 2 on the basis of concentration. So yes, now we are going to discuss about the different categories or different types of the acids. First, we discussed about the organic acids. Yes, organic acids are those acids which we are getting from plants and animals, as I told you now only. So yes, those acids which we are getting from plants and animals are known as organic acids, as they are having the organic origin. Organic matter means plants and animals. तो ये organic matter से बने हैं, इसलिए हमने इनको बोला organic acids. Okay. तो organic acids can be present in number of ways or number of things. First one is citric acid. Citric acid is present in citrus fruits. Citrus fruit मतलब जो खट्टे fruits होते हैं, like lemon, orange. तो ये सारे के सारे जो होते हैं इसमें citric acids होते हैं. Okay. Next is lactic acid. Maybe you heard many times in your previous classes or somewhere. Lactic acid is present in curd or lactic acid is present in milk. तो milk and milk products are having the lactic acid. It is very important acid जो हम पढ़ते हैं और काफी टाइम तक पढ़ते हैं, काफी क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे. तो lactic acid is present in milk and milk product. As the curd is a milk product, so it is also having the lactic acid. Next is ascorbic acid. Ascorbic acid is present in amla and citrus fruit. It is having little bit सो टेस्ट, मतलब वो आंवला वैसे तो बिटर होता है लेकिन उसके अंदर जो थोड़ा सा खट्टापन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट वन इज टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमेरिंड मीन्स इमली और ग्रेप्स और अनराइप्ड मैंगोज. तो ये सारी की सारी चीजों में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड. नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर. विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. Next one is amino acids are present in proteins. Proteins बने किससे हैं? Amino acids से बने हैं. Yes बेटा, this chart is present in your book. Many more acids are there, but these acids are very very important, which we are going to study in your higher classes also. If you will learn all these acids, their name of the acids and the type of the things in which they are present, then it will be easy for you in your higher classes to understand the concept. तो अभी अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका कंसेप्ट चलता जाएगा हायर क्लासेस तक. ठीक है. नेक्स्ट इज क्या होता है कि दिस टार्ट्रिक एसिड इज जनरली मिक्स्ड विद द बेकिंग सोडा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक. केक के अंदर हम जो फ्लफीनेस लेकर आते हैं, सॉफ्टनेस लेकर आते हैं, इट इज जस्ट नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ द बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एक्चुअली हम उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं ताकि वो बेकिंग पाउडर में चेंज हो जाए. ये कंसेप्ट क्या है, इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट इन आवर 10th क्लास. तो अभी के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग सोडा में मिक्स करते हैं केक के अंदर, केक बनाने के अंदर. ओके. एसिटिक एसिड भी डिटेल में हम 10th क्लास में करते हैं. तो ऑल दीज एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, microorganisms cannot work in acidic environment. Microorganisms cannot grow or cannot live in the acidic environment, so they will die or they will not even develop or grow in the acidic environment. So that's why we are using many of the acids as a preservatives. Preservatives maybe you heard many times. Preservatives maybe you heard many times when we are taking any kind of drink or any kind of eating material from the market. So yes, preservatives is added in the eating material which we are purchasing from the market to stop the growth of the microorganism. क्योंकि घर में मैंने एक ग्लास जूस निकाला, वो हाफ एन आवर में ही खराब हो जाता है.
मार्केट से मैं जूस के पैकेट्स ले रही हूँ, वो 1 डे बाद भी, 10 डेज बाद भी, 1 मंथ बाद भी वैसे की वैसे ही फ्रेश है। आज मैंने खोला तब भी उसका टेस्ट वही है, 1 मंथ बाद मैंने उसको ओपन किया तब भी उसका टेस्ट वही है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मेरे घर में तो वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उसको खराब होने से बचाते हैं, और इसलिए इनको ऐड किया जाता है। बट दीज आर द हार्मफुल मटेरियल फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर बॉडी। ये हार्मफुल मटेरियल है, इसलिए बाजार की जो चीजें होती है, मार्केट से जो हम जूस वगैरह परचेज करते हैं, कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, हमें वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। घर की बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रिजर्वेटिव्स। ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, सो यस, विनेगर जनरली एडेड इन द पिकल्स विच वी आर परचेज फ्रॉम द मार्केट। पिकल जो है वो काफी टाइम तक खराब नहीं होते, हालांकि वो सोल्ट की वजह से भी, स्वीटनेस की वजह से भी, शुगर की वजह से भी खराब नहीं होते, लेकिन उसमें विनेगर भी ऐड होता है जिससे वो काफी टाइम तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो यस, ये हम इसलिए प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फॉर्म में। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, तो हमें पता ही है कि वी आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, वी रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर ग्रोथ। अभी आप लोगों की एज में तो प्रोटीन बहुत जरूरत है। तो यस, दिस प्रोटीन इज हैविंग अमीनो एसिड। एसिड मीन्स एसिड ओनली। तो यस, ये एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन फैट्स। ये फैट्स में प्रेजेंट है। अगेन इट इज एन एसिड, लेकिन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो यस, वन मोर थिंग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। डीएनए इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। It is again an acid, but it is a major constituent of all the cell, or it is present in all kinds of. Next we are having mineral acids. Mineral acids are those acids which we are getting from the minerals which are found on the earth. अर्थ पे जो मिनरल मिलते हैं उनसे हम जो एसिड्स बनाते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। As we are making these acids, so in the laboratory, so these are also called as laboratory acids or inorganic acids. Okay, inorganic acids as they are made up of the inorganic material like rock, तो इन सब चीजों से बने होते हैं तो हम इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। मिनरल जो हमें अर्थ पे मिलते हैं उनसे बने होते हैं तो हम इन्हें मिनरल एसिड भी बोलते हैं। और उसके अलावा हम इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो ये लेबोरेटरी एसिड्स भी कहलाते हैं। यस, दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, nitric acid HNO3. So these are again a very important part in your higher classes. आपको ये बहुत डिटेल में करने हैं, तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स। ये किंग ऑफ द केमिकल्स होता है बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ नाउ। अभी अर्थ पे जो हमने बनाया, जो नेचर से मिला, सब मिला के अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई एसिड प्रेजेंट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द केमिकल्स या किंग ऑफ द एसिड्स। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड विच वी आर मेकिंग इन द लैब्स। तो एक्चुअली व्हाई वी आर मेकिंग एनी एसिड इन लैब? हम क्यों कोई भी चीज लैब में बनाएंगे? बिकॉज द एसिड्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई वी कैन लिव। मैं अभी भी, मेरी बॉडी में अमीनो एसिड्स भी है, फैटी एसिड्स भी है, डीएनए भी है, लेकिन फिर भी स्टिल आई एम अलाइव। एसिड्स कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है ना, क्यों? क्योंकि ये वीक है, माइल्ड है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि अपने यूज के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स चाहिए थे। दैट्स व्हाई वी मेड सम ऑफ द एसिड्स इन लेबोरेटरी। दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एंड दे आर हैविंग कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब ये कोरोजन कर सकते हैं, किसी भी चीज पे जंग लगा सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड एज वेल एज दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो इसलिए हम इन एसिड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, बहुत ही ये हानिकारक होते हैं। इनको एज इट इज हम हाथ नहीं लगाते हैं। यस, इन एसिड्स को हम खा भी सकते हैं, खा रहे हैं, लेकिन इन एसिड्स को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो यस, अभी तक की आपने स्टडी जो भी की है टिल क्लास 6, आप लोगों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा होगा है।
तो यस, एसिड्स और बेसिस के बारे में अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था, एसिड्स आर sour in taste and bases are bitter in taste. Yes, एसिड्स सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, एंड बेसिस बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं. तो हमने कैसे पता चलाया कि ये सोर हैं, खट्टे हैं और ये कड़वे हैं? खाकर. तो यस, अभी तक की स्टडीज में हमने ये पढ़ा है कि वी कैन टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नॉट देयर टू टच इवन द एसिड. ठीक है, हमें टच भी नहीं करना, उसको चखना तो बहुत दूर की बात है. until and unless not told by your teacher or some elders who is known with this particular chemical, या जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी एसिड के बारे में आप बात कर रहे हो, जब तक उस बड़े को या टीचर को नहीं पता है, आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना है, बिकॉज दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर एंड दे आर वेरी हार्मफुल. वो हमारे हाथ में से ऊपर से जाएंगे, नीचे से निकल आएंगे, तो दे कैन क्रिएट अ होल इन आवर हैंड. इतने ज्यादा रिस्की होते हैं. तो यस, नाउ इन आर दिस स्टडी वी आर गोइंग टू, वी नो दैट कि नाउ वी कांट टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस डायरेक्टली. ओके, सो यस, ये बहुत ही हार्मफुल है. Now our next type of classification was on the basis of their concentration, that acids are of two types, diluted acids and concentrated acids. So yes, what are these? So diluted acids are those acids in which both the acids are having water and acid. जिस भी एसिड की हमारे बात कर रहे हैं, दोनों ही एसिड में वाटर भी है, एसिड भी है, बट अ स्मॉल चेंज इज देयर. Diluted acid means more of water and less of acid. Yes, more में 95% 5% हो सकता है, 98% 2% हो सकता है, 99% 1% हो सकता है. But concentrated means less of water and more of acid. जब एसिड ज्यादा होता है और वाटर कम होता है तब हम उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं. Diluted acid means the acids which are having more amount of water as compared to acids are known as diluted acid. But concentrated acids are those acids in which amount of water is very less but the amount of acids are very high. So these kind of acids are known as concentrated acids. तो यस, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट में चेंज नहीं कर सकते? कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूटेड एसिड. ऑफ कोर्स हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली. तो यस, बाय एडिंग वाटर हम पानी डाल के कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में चेंज कर सकते हैं. यस, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड को हम CONC डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. कंसंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर कैन गिव यू डाइल्यूट एसिड. नो डाउट आप ऐसे बना सकते हो, बट What is that but? But इस चीज को करते हुए, इस प्रोसीजर को करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना होता है, जो आप बड़ी क्लासेस में भी करोगे. अभी ही सीख लो और इसको याद रखो. When we make the dilute acid from a concentrated acid, then always and always we are adding the acid in the water, not water in the acid. Okay? हम हमेशा और हमेशा एसिड को पानी में डालते हैं, पानी को एसिड में कभी भी नहीं डालते हैं. Why it is so? Because in converting this concentrated acid into the dilute acid, a large amount of heat is produced which can burn you. तो यस, इसलिए क्या होता है कि अगर मैं एसिड को ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालूं तो जो भी हीट रिलीज हो रही है, पानी उसको कंपनसेट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. इस वजह से हमें बर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं. केयरफुली तो हमें तब भी करना है, लेकिन बर्न होने के चांसेस और एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो जाते हैं. इसलिए हम हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड को ही पानी में डालते हैं, कभी भी पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं डालते हैं. सो यस, दिस इज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द एसिड्स. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस. Yes, bases are those substances which are bitter in taste. So yes, bases can be sodium hydroxide, can be magnesium hydroxide, can be calcium hydroxide. Again, the bases are classified into two categories or two types on the basis of their dilution, on the basis of their concentration.
So yes, it is of two types, concentrated bases or diluted bases. Concentrated base, again it means the amount of base is more and amount of water is less, and here the amount of water, concentrated bases means the amount of water is less and amount of base is more, and dilute base means amount of water is more and amount of base is less. But here this is not so much risky. It is risky if so much concentration is present, but it is not that much risky as the acids. So yes, हम इनको टच कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने बिल्कुल कंसंट्रेटेड को हाथ लगा दिया, लेकिन ये उतने हार्मफुल नहीं है जितने की एसिड्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम बहुत आराम से डाइल्यूट बना सकते हैं, कंसंट्रेटेड में पानी डाल के आराम से हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो यस, ये इतने रिस्की नहीं है, इतने इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। So this is the concept regarding the bases. So now we are having some substances which are sour in taste, some substances which are bitter in taste, some are acid, some are bases. But we are having one more category, that is neutral substances. Neutral substances are those substances which are neither acid or nor bases. तो जो ना एसिड्स हैं, जो ना बेसिस हैं, उनके बीच में कहीं पर हैं, तो उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि केन शुगर, सिंपल शुगर, सोल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मोस्टली न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर स्वीट इन टेस्ट, सोल्टी इन टेस्ट। तो ये सोर हो गया, बिटर हो गया, बाकी के दो टेस्ट जो रह गए थे, दैट इज शुगर, स्वीट एंड सॉल्टी। These are neutral substances. So yes, these are the substances, acid, bases and neutral substances are present in our nature. ये तीन तरह के substances हमारे nature में present होते हैं, and this is all about for today's video. Thank you.